Alright, welcome to another video on Power BI and data analytics. लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा? बेसिकली आई गिव यू वर्क अराउंड ऑफ कि हम क्या बनाने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं थर्ड प्रोजेक्ट में पावर BI यूज करके. In this video, let's start preparing the tool and preparing our data. For data, we need to download a database or import a database rather. So इसका मतलब क्या है? लास्ट प्लेलिस्ट में जब हम SQL सीख रहे थे तो हमने अराउंड 50,000 कुछ एप्लीकेशंस था एप्लीकेशंस के टेबल में, एंड आई थिंक द डेटा वॉज फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर. ठीक है. पावर BI के लिए मैंने क्या किया है, आई हैव एडेड द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. तो अब जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डेटा रहेगा. सो वेयर इज दिस डेटा? So obviously we will not create the database again. मैंने already I have done that hard work for you. अब क्या करते हैं, लेट मी शेयर दैट डेटाबेस इन डिस्कॉर्ड सर्वर. फिर डिस्कॉर्ड सर्वर से तुम वो डेटाबेस डाउनलोड कर लेना और इंपोर्ट कर लेना MySQL में. ओके, आई शो यू, आई टेल यू what I mean by that. So let's quickly go to Discord server and I'm going to upload a file here which you should which you should download. डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक और डिस्कॉर्ड सर्वर का इनवाइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. So let's say data analytics, data analysis and visualization, this one, and then Power BI, dataset and CWC underscore Power BI. ये बेसिकली क्या है ना, पूरा डेटाबेस मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है SQL फाइल में, और जब तुम इंपोर्ट करोगे तो यू विल हैव अ न्यू डेटाबेस विद न्यू डेटा. सो हियर इज द updated CWC database for Power BI project. Okay, right. Then how do you then import this database into your MySQL? So what you do is you download this. Okay, you download this somewhere on your computer. और एक बार डाउनलोड होने के बाद देन गो इनटू MySQL. You go to server, the server option here, then go to data import and select this option, import from self-contained file, और ब्राउज करके उस लोकेशन में जाना जहाँ तुमने डिस्कॉर्ड वाला फाइल SQL फाइल डाउनलोड किया है. मे बी इट्स इन योर डाउनलोड फोल्डर और वेरेवर. फॉर मी इट्स ऑलवेज हियर. KPI, Power BI, dataset and CWC Power BI. Okay, select this. Then डिफॉल्ट स्कीमा बोल रहा है कि कहाँ कौन से स्कीमा में इंपोर्ट करना है तुमको ये डेटाबेस. सो व्हाट यू डू इज जस्ट क्लिक ऑन न्यू एंड क्रिएट अ न्यू स्कीमा. लीव व्हाट यू हैव ऑलरेडी, उसको छोड़ दो. दैट वाज गुड फॉर SQL सीखने के लिए, वो दैट वाज गुड. फॉर Power BI लेट्स क्रिएट अ न्यू स्कीमा, CWC underscore Power BI. Alright, give this a name and then hit OK. Make sure dump structure and data selected है and then you click on start import. अगर तुम लैपटॉप पे कर रहे हो ना ये, तो स्टार्ट इंपोर्ट छुप जाता है कभी कभी. सो मेक श्योर यू स्क्रॉल डाउन और क्लिक ऑन टैब लाइक दिस एंड देन go to start import and then hit it and then click on it. Okay, so for me it's easily visible, so I'll click on start import where I'll let it finish it. Okay, so the database has been imported. I'll click on refresh. यहाँ पे छोटा सा refresh बटन है, वो refresh बटन पे क्लिक करना and then you will have a new schema here, CWC underscore Power BI. यहाँ पे कुछ tables दिखेंगे क्या है. Alright, so this is very important क्योंकि ये database हम import करेंगे in Power BI. Alright, now because मेरे पास already updated database है, मैं CWC Power BI को delete मार रहा हूँ. But for you guys, make sure that you have imported the new data set. Okay, I'm going to say drop schema, and for me I will keep working in this database for Power BI as well. So alright, अब हमारे पास database updated है, नया database है हमारे पास. नेक्स्ट स्क्रीन, अभी नेक्स्ट क्या करना है, हमको Power BI डाउनलोड करना है. तो गूगल और क्रोम ओपन योर ब्राउजर और यहाँ पे टाइप करो डाउनलोड Power BI. Okay, it's a free tool, you don't have to pay for it. Go to downloads, Microsoft के वेबसाइट पे जाओ, the first website that will open, and then click on something called as Microsoft Power BI Desktop. Okay,
क्लिक ऑन डाउनलोड, विल से ये तुमको माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर में लेके जाएगा, फेयर इनफ। सो डू दैट, माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर खुलेगा एंड देन यू शुड सी Power BI. We'll just wait for a few seconds. Okay, so this is how it will look like. मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो मेरे को बोल रहा है ओपन द सॉफ्टवेयर, तुम्हारे लिए शायद डाउनलोड है, इंस्टॉल होगा। सो फील फ्री टू डू दैट। आई थिंक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल इट। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पे जाना और डिस्कॉर्ड चैनल पे एरर का स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दो, सो आई विल बी एबल टू रिप्लाई। और put a comment, इस वीडियो में कमेंट डाल दो, आई विल बी एबल टू रिप्लाई ऑन दैट एज वेल। ओके, वंस द पावर BI इज डाउनलोडेड, तुमको और एक चीज़ लगेगा। इट मे नॉट बी मैंडेटरी फॉर एवरीबडी, कुछ लोगों को शायद एरर आवे, और वो एरर है कि भाई कनेक्टर मिसिंग है। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सो लेट्स ओपन पावर BI, एक नया पावर BI खोलते हैं। लेट्स क्लिक ऑन अ न्यू पेज। न्यू कैसे खोलते भाई? कंट्रोल N दबाते, चलो कंट्रोल N, so that a new Power BI screen will open. Let's wait for a few seconds. Alright, so this is how it will look like. We can click on blank report. Alright, it will take you to this page. और यहाँ पे क्या करना है? So you go to get data and you click on more. Okay? So click on MySQL database. और जब तुम कनेक्ट पे क्लिक करोगे ना तो यू माइट गेट एन एरर सेइंग दैट कि भाई कनेक्टर मिसिंग है। ओके, सो इफ यू गेट दैट मैसेज, व्हाट यू नीड टू डू इज you go to google.com again, and in a new page just type download MySQL connector for Power BI. Okay, click on this first link और तुम्हें ये इंस्टॉल करना है। सी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए आज तो वर्जन 8.4.0 है, मे बी जब तुम देखोगे शायद नया वर्जन आ गया रहेगा। तो इस बट रिमेंबर इट इज़ MySQL कनेक्टर /NET, तो ये इंस्टॉल करना, ठीक है, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना। समटाइम्स यू मे हैव टू रीस्टार्ट योर सिस्टम को रीस्टार्ट करो, पावर BI ओपन करो एंड देन click on, let me go back here, yes, click on MySQL, select MySQL database again and it should take you here. Okay, now assuming कि Power BI तुमने डाउनलोड कर लिया and then you have also downloaded the MySQL connector, अब क्या करना है? नेक्स्ट करना है, हमें डेटा लेके आना है। So what you do is you go to my Discord channel. If you don't know where to find my Discord channel, there will be an invite in the description. इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनवाइट है, प्लीज़ क्लिक ऑन दैट इनवाइट, इट विल टेक यू टू दिस पेज, दिस डिस्कॉर्ड चैनल। और यहाँ पे थर्ड प्रोजेक्ट KPI डैशबोर्ड पावर BI करके एक चैनल है, ठीक है, उस पर क्लिक करना एंड यू विल फाइंड एन SQL क्वेरी एंड द सेकेंड डेटा सेट दैट यू विल नीड इज द वॉक-इन्स डेटा। स्टोर का वॉक-इन्स डेटा हमने बनाया नहीं था डेटाबेस में, सो दैट इज एडिशनल डेटा सेट दैट आई हैव क्रिएटेड, and let me save it here so that you can go and download that as well. Power BI datasets and updated walk-ins. ठीक है, so you will need two datasets. One is that SQL query का output and the other one is this updated walk-ins. So download both this data and let's go back to Power BI. In fact, let me take a pause here. In the next video, we will import this two datasets and we will start creating our dashboard. All right, see you in the next video. Bye.